نہیں ہوگا بٹ صاحب مینج کرو نا، بٹ صاحب مینج کرو، مینج کرو یار، ٹیبل دور رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی رہائش کے قریب بنی گالہ میں، اور کل رات کو یہاں پر پولیس کی نفری آئی تقریباً 3 بجے کے قریب۔ ابھی میں نوجوانوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تفصیل ساری، اور انہوں نے یہاں پر آ کر بڑی تعداد کے اندر نفری تھی، قیدیوں کی ساتھ میں نے ساتھ لے کر آئے تھے، اور جب نوجوانوں نے ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور ان کو کنفرنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں پر آئے ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب کے گھر کی سیکیورٹی کے لیے جو ضروریات ہیں اس کا ہم سروے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب ذرا سا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ابھی تک اس سلسلے میں ہوا کیا ہے۔ آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میرے پاس خط آیا، انٹیریئر منسٹری کا، وزارت داخلہ کا خط آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر ہے، اور اس تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر کے مطابق عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں، حفاظت کے انتظامات جو ہیں، ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ جی یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، اور آخر میں یہ لکھ دیا کہ اس میں سے ایک بلٹ پروف گاڑی تو ہم دے دیں گے، باقی یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر، اور پاکستان کے مستقبل قریب کے وزیر اعظم کی حفاظت جو ہے وہ مکمل طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک ایسے شخص کے لیے جس نے کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، کسی پارٹی کی لیڈر نہیں، کنوکٹڈ ہیں، بیل پر باہر ہیں، ان کے لیے حفاظتی اقدامات حکومت کر سکتی ہے، تو عمران خان کی حفاظت کی اولین ذمہ داری حکومت پہ پڑتی ہے، اور تمام ادارے جن کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ حفاظت کر سکیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں، اور جو جو اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں۔ اب ہم کل کے واقعات پر آتے ہیں۔ کل شام کو میرے پاس ایک بہت سینئر انتظامی افسر کا فون آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملتان کے اندر بڑا شدید خطرہ ہے، اور یہ کوئی 5 بجے کے میرے قریب لگ بھگ کی بات ہوگی۔ میں خان صاحب سے رابطہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی بلٹ پروف استعمال کریں، اور اگلے دن صبح 3 بجے رات کے اندھیرے میں پولیس سیکیورٹی کا سروے کرنے آتی ہے۔ تھریٹ اسیسمنٹ کی لیٹر ایشو کرنے کے 10 دن کے بعد وہ سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے رات کا اندھیرا اور صبح 3 بجے کا ان کو وقت ملا تھا۔ یہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جس کام کے لیے آئے تھے، ان کو یہ تو پتا تھا کل یہاں پہ عمران خان نہیں ہے، وہ تو اعلان ہو چکا تھا۔ یہ اگر یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ یہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے خان صاحب ڈر جائیں گے، تو خان صاحب تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کھڑے ہوئے میرے ساتھ نوجوان، آپ ان کو نہیں ڈرا سکتے۔ جتنا آپ طاقت کا استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کریں گے، اتنا زیادہ رد عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! عمران خان اور تحریک انصاف پرامن سیاست میں یقین رکھتی ہے، قانون کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے۔ کبھی بھی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ پر حملے نہیں کیے، کبھی بھی تحریک انصاف نے کوئٹہ بینچ بنوا کر سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف فیصلے نہیں کروائے، کبھی بھی تحریک انصاف نے
सर्विंग आर्मी चीफ के तैयारे को अगवा करने की कोशिश नहीं की। हम पुरअमन सियासत में यकीन रखते हैं। हमारी ताकत, इमरान खान की ताकत जो है वो पाकिस्तान के अवाम है और उसका अल्लाह के ऊपर ईमान है। उसका तशद्दुद का कोई इरादा नहीं है। लेकिन तेरा एक इशारा, लेकिन मैं इमरान तेरा एक इशारा, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हरकत की गई और इमरान खान को कोई हिरासत में लेने की कोशिश हुई, कोई जान को खतरा डालने की कोशिश की गई, जान तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में, इनके तो हाथ में है ही नहीं इन बुज़दिलों के, लेकिन अगर ऐसी कोई कोशिश भी की गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। उसके बाद हम में से तो कोई इनको रोक नहीं सकता, इमरान खान भी ना रोक सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान को इस इम्तिहान में मत डालें। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, सादा रास्ता है, जमहूरी रास्ता है, आईनी रास्ता है, अवामी रास्ता है। इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें और वो शख्स जो है तो हमारे सियासी हरीफ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है मुझे उस पे तरस बढ़ता चला जा रहा है। जिस मुश्किल में शहबाज शरीफ को आपने बिठाया हुआ है, उसको गरीब को ये नहीं समझ में आ रही किसने लाके बिठा दिया है, ना उसको ये समझ में आ रही है कि क्यों बिठा दिया है। इख्तियार उसके पास कोई नहीं है। वो कल बिजनेसमैन के पास कह के बैठा हुआ कह रहा है अल्लाह का वास्ता आप हमें बताएं कि हम क्या करें। ओ भाई तुम्हें नहीं आप पता क्या करना है तो बैठे क्यों? इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवाओ, इलेक्शन करवाओ। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने वापस आना है और जिस तरीके से इमरान खान ने और उसकी हुकूमत ने दुनिया में एक सदी में सबसे बड़ी जो वबा फैली हुई थी, जिसके सामने बड़े बड़े मुल्क ढेर हो गए, जिस तरीके से उस वबा से बचाया, सारी दुनिया ने कहा कि बेहतरीन रिस्पांस पाकिस्तान का था। जिस तरीके से 5.7% मईशत की ग्रोथ हुई कोरोना के बावजूद, और इस साल 6% की ग्रोथ हुई है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वापस आपको 6% नहीं 7% और 8% भी करके दिखाएगा। कुर्सी से उतरो। तो इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक दफा फिर कह रहा हूं, अगर कुछ करने की कोशिश की तो फिर हमसे ना पूछना, क्योंकि पाकिस्तान तुमसे नहीं संभाला जाएगा। और जैसे अभी असद उमर साहब ने, सेक्रेटरी जनरल साहब ने अभी जैसे इन्होंने बात की, आपके इल्म में है कि एक खदशे का बार बार जो है वो इजहार हो रहा था। आज वही कुछ हुआ कि ये शरीफ खानदान का एक पुराना फार्मूला है, इक्तदार में आओ, माल बनाओ, लूट मार करो और वापस इक्तदार में आकर अपने केसेस को बंद करवाओ। यानी कि इन्होंने हमेशा जब भी इनके खिलाफ कोई एहतसाब का अमल शुरू हुआ है उसके ऊपर ये हमेशा कभी टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते हैं, कभी इल्तमाओं के पीछे छुपते हैं और कभी एनआरओ ले लेते हैं। यानी जो परवेज मुशर्रफ से जो लिया गया एनआरओ है उसकी कीमत आज भी पाकिस्तान जो है वो चुका रहा है। और ब्रॉडशीट के अंदर जो $27 मिलियन जो जुर्माना हुआ है वो शरीफ खानदान की जो की गई लूटमार थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान को उसकी कीमत अदा करना पड़ी। अब आप देखें कि जैसे ही ये वज़ीर आज़म बनते हैं, जो डॉक्टर रिजवान मरहूम हैं उनको उनकी मौत से पहले छुट्टी पे भेज दिया जाता है। अली मर्दान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसका तबादला कराची कर दिया जाता है। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, जो DGFI नए लगाए जाते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप जो है इस केस से को वापस ले लें, हमें इस केस को चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तमाम हुक्मनामे कौन जारी कर रहा है? ये शहबाज शरीफ जारी कर रहा है। और आज वही हुआ कि जो नया प्रोसिक्यूटर जो कि शरीफ खानदान का ज़ाती बंदा है, जो उनके अपने चैम्बर का वकील है, उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर देते हैं। वो ऐसे ही है कि एक चोर हो, चोर अपना तफ्तीशी भी खुद अपॉइंट कर दे और जिसने उसके खिलाफ केस साबित करना है वो भी अपॉइंट कर दे।
यानी कि FIA का प्रोसिक्यूटर वो भी शहबाज शरीफ का तैनात कर दिया गया और जो उनका डिफेंस का वकील है वो भी वहां पर है। और आज FIA का वकील, कितनी शर्मनाक हरकत है कि कानून के मुनाफी वो कहता है जी कि चालान में सुकम है, ये चालान वापस कर दें, आप फर्द जुर्म आयद ना करें। वो किसकी जुबान बोल रहा था? वो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जुबान बोल रहा था, जो NRO 2 के लिए इस सारे इकदामात को उन्होंने उठाया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो ऑलरेडी हो चुका, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब मामला क्या है? अब मामला यह है कि अगर वाकई कानून की हाकमियत कायम करनी है और ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आना है और ताकतवर का एहतसाब भी होना जरूरी है, तो ये 1 अप्रैल के ऊपर ये तमाम इकदामात को जाना चाहिए। जो अफसरान उस वक्त मौजूद थे वो तमाम अफसरान जो हैं वो वापस आने चाहिए, ताकि इस सारे ट्रायल के ऊपर शहबाज शरीफ इन्फ्लुएंस ना कर सकें। 16 अरब रुपए का चालान जाली अकाउंट्स का FIA का अदालत में जमा हुआ और कहते हैं जी मफरूर हैं, 3 लोग वापस नहीं आ रहे। उन 3 लोगों में एक मफरूर सलमान शहबाज भी है, ताहिर नकवी, मसरूर वो मकसूद चपड़ासी जिसके अकाउंट में 4 अरब है। अब मुझे ये बताएं कि सलमान शहबाज तो शहबाज शरीफ का बेटा है, उसके तो ना कमर में दर्द है ना पेट में दर्द है, उसके तो डॉक्टर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसको तो वापस बुलाएं। उनके पीछे छुप के इल्तवाएं लेना चाहते हैं। ये हमेशा इल्तवाओं के पीछे छुपते रहे हैं, चाहे हुदैबिया केस हो, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते रहे हैं। अब हम इस केस का पूरा पीछा करेंगे। ये दिन दिहाड़े डाका मारा गया। इनके वकील कहते हैं जी शहबाज शरीफ का शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मसरूर अनवर है ये उन 14 मुलाजमीन के अकाउंट से पैसे निकालता रहा है, पैसे निकाल कर शहबाज शरीफ के जाती अकाउंट में पैसे जमा कराता रहा है। बैंक्स की रसीदें मौजूद हैं, आप किसी की आंखों में मट्टी नहीं डाल सकते। ये तमाम तर बैंकिंग रिकॉर्ड मौजूद है और ये चालान FIA की टीम ने बड़ी मेहनत से बनाया, इन्होंने तो तावन ही नहीं कर रहे थे। तो हमारा ये मुतालबा है कि 1 अप्रैल तक के जो इकदामात हैं वो वापस आएँ। और ये जो कहते हैं जी ये मुखालफत में बनाए गए थे केसेस, ये फैसला आपने करना है, ये फैसला अदालतों ने करना है, अदालतों को करने दें, अदालतों को प्रेशराइज ना करें। आप जो है वकला को, प्रोसिक्यूटर्स को चेंज ना करें। आप तफ्तीशी अफसरों को जो चेंज किया उससे इनकी बदनीयती खुल के सामने आ गई है और ये पाकिस्तानी कौम के सामने हकायक है जो आज की कार्रवाई हुई है। जिस तरह सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इन्होंने अदालत का आज मुहासरा किया हुआ था, जो जज साहब हैं सेंट्रल कोर्ट 1 FIA के, उनकी गाड़ी को रोका गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। जो मुल्जमान हैं, जो गवाहान हैं, उनको अदालत में जाने के ऊपर दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो ये एग्जैक्टली शरीफ खानदान की डॉक्ट्राइन है, इसका रास्ता जो है वो रुकना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हाकमियत के लिए हम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। एक सेकंड ठहरिएगा यार। पता चला था कि प्रिजनर वैन्स भी ये लेके आए थे। इमरान खान के टाइगर्स कान खोल के सुन लो, किसी कैदी वैन से नहीं डरते हैं। और सियालकोट में ये इमरान खान के जो टाइगर्स है ना, उन्होंने एक ट्रेलर चलाया था। अभी पिक्चर बाकी है इम्पोर्टेड हुकूमत वालों। और अगर समझते हो कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च को प्रिजनर वैन में डाल के उसे कैद कर लोगे, ये तुम लोगों की गलत फहमी है। हम एक पुरअमन हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अगर ये खलल डालेंगे तो फिर इमरान खान के टाइगर्स अपना रद्द-ए-अमल देंगे। इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सड़कों पे फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। पार्टी नहीं चाहती 2023 से पहले इंतखाबात की, तो वहाँ पर एक डेडलॉक है। किस तरीके से आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इतना स्ट्रॉन्ग है इस वक्त कि वो इलेक्शन में रुकावट बने? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के बस चले तो इलेक्शन कभी भी ना हो, क्योंकि उनको पता है कि अवाम के अंदर तो उनकी पास कोई साख बाकी बची कोई नहीं है। तो क्या चले हुए सियासी कारतूस फैसला करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का? शहबाज शरीफ के पास तो एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है इस वक्त। चले मैं मशवरा, मुझे मुफ्त के मशवरे देने का शौक है, एक मशवरा मैं दे ही देता हूँ। शहबाज शरीफ के साथ पास एक बहुत बड़ा सियासी ट्रम्प कार्ड मौजूद है। अगर वो आज सिर्फ यही ऐलान कर देना कि जो हुक्मरान अपने लिए पसंद करता है वही अवाम के लिए भी पसंद करना चाहिए ना, तो वो ये ऐलान कर दें कि हर पाकिस्तानी को एक एक मकसूद चपड़ासी दिया जाएगा जिसके अकाउंट में से अरबों रुपए मिलेंगे, तो शायद वो इलेक्शन ही जीत जाए अगला। सर ये बताइएगा कि कल चेयरमैन PTI ने मुल्तान में ऐलान करना था लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
तक ये तासुर सच्चा है कि आपके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और कल एक मैसेज दिया गया इंतखाबात के हवाले से जिसके बाद डेट अनाउंस नहीं की गई, तो ये तासुर किस हद तक सच है? ये तो आप इसी से देख लेना कि अगर ये तासुर ठीक होता तो सुबह 3 बजे यहाँ पुलिस की नफरी कैदियों की वैन के साथ में आती, ऐसी हवाई खबरें। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। राणा सनाउल्लाह तेरी जिंदगी, राणा सनाउल्लाह तेरी जिंदगी। छुड़ा है यार। ਪਿੱਛੇ ਇਨਕੇ ਉਧਰ ਸਦਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਛਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਧਰ ਵਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲੋੜੂ और यार हाँ इधर ही बैठ जा